আপনারা রাখেন। অনুগ্রহ করে শুনবেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত डाउनलोड करें। বালির নামকরণ ব্যাপারে তো দুটো জিনিস আমরা শুনি, একটা হচ্ছে যে একটা খাল দেখা যায়, খালের ওপারটা হচ্ছে উত্তরপাড়া আর এটা হচ্ছে দক্ষিণ পাড়া ছিল। কিন্তু 2 নম্বর হচ্ছে যে এখানে নাকি একটা ফার্স্ট পেপার কারখানা ছিল। তো বালির পেপার যেটা দেখি না, সেই পেপারটা নাকি তৈরি হতো, সেই কারণে বালি নাম হয়েছে। আর একটা আমরা যেটা শুনতে পারি যে এখানটা যেহেতু মানে অনেক কাদা ফাদা হয়ে থাকতো, বালি কাদা হয়ে থাকতো, সেই জন্য এটার নাম নাকি বালি হয়েছে। এরকম করে একটু বালির ইতিহাস নিয়ে বা বাজারের ইতিহাস নিয়ে কিছু বলে। না, বালির ইতিহাস বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি
মানে আগেকার দিনে কী ছিল, এখানটা ছিল কাল্টিভেশন ল্যান্ড ছিল, সেই জন্য এখানটা এখনও জল আছে এবং বৃষ্টি বা বন্যা হলে জল এখনও ঢুকে যায়। এবং যে বালি নামা পড়ছে, যে ছোটো যে সাবওয়ে যেটা আমরা দেখতে পারি, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জল নিকাশের জন্য ছিল। আর মিল যখন শুরু হয়েছিল তখন তো বাঙালি ছেলেরা চাকরি করতো না, সেই জন্য কোয়ার্টারটা শুরু হয়েছিল। কোয়ার্টারটা মানে হচ্ছে যে বাইরে থেকে যখন লোক নিয়ে আসতো, লোক এসে তখন কাজকর্ম করতো, কারণ বাঙালিরা তো আর মিলে কাজ করতে চাইতো না। কেন কাজ করতে চাইতো না কেন? ব্যাপার হচ্ছে মিলে অনেক খাটনি ব্যাপারটা ছিল, তখন কাজের ব্যাপারটা খুব ইজি ছিল, সেই জন্য মেনলি গভর্নমেন্ট সার্ভিস বা এখানে ওখানে তারা সার্ভিসটা করতো। সেই সময় মিলে পারিশ্রমিকও খুব কম ছিল। আর অনলি সোমবার, যেহেতু মিলে মানে ইয়ে থাকে, হাট ওই সপ্তাহ হয়ে যায়, সেই জন্য সোমবার করেই বাজারটা বসে। ওটা কি মানে মিল সেন্ট্রিক বাজারটা ছিল, মানে ছোটবেলা থেকে Actually দেখছো? মিল কেন্দ্রিক বাজারটা ছিল। মিলে তো সপ্তাহ অন্তর লোকে টাকা পায়, তখন বাজারটা লোকে সপ্তাহ সপ্তাহ জিনিসটা হুম। কেনাকাটা করার ক্ষমতা থাকতো না। এই ব্যাপারে তো বাজারে গেলে এরকম হয় যে একসাথে মিলে এরকম সব বিয়ে করছো? হ্যাঁ, বাজারে গেলে যে এরকম সবার সাথে কথাবার্তা বলা? অ্যাকচুয়ালি তো বাজারটা তো ওই জন্য ওখানে যায়, মানে সেই জন্য মাছ মোট টাইমটাও লাগে। হুম। একটা জাস্ট বিশেষ করে রোববার একটা গ্যাদারিং হয় জন্য একসাথে সবাই মিলে চা টা খেলাম, ওখানে দোকানে চায়ের দোকান আছে, হুম। দেখা যায় যে প্রচুর ভিড় আছে। এবং অনেকে আছে যে তারা কাজ থেকে ফেরার পথে চা খেয়ে তারা যায়। সেটা আমার যখন বয়স 20 বছর বয়স, তখন থেকেই আমি এই হাটটার সাথে পরিচিত। তো এরকম হাটটা এরকমই জমজমাট হতো তখন? প্রথম দিকে এতটা জমজমাট হতো না, তখন প্রথম দিকে একটা যে মসজিদ আছে, মসজিদ পর্যন্ত হুম। কাপড়ের এই ব্যবসাটা বসতো। দিনকে দিন ওটা পেট করতে করতে এখন দেখতে ওটা জিটি রোডের উপর চলে গেছে। এভাবে আমাদের অনুযায়ী তো দেখছি দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। তারপর আমার যেখানে বাড়িটা আছে সেখানেই লাস্ট ছিল, কিন্তু তারপরে দেশে সেই ঝিলদার পর্যন্ত বাড়িটা চলে গেছে। এভাবে প্রচুর বাড়ি হয়ে যাচ্ছে, এখন আবার বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হচ্ছে, এভাবে তো একটা ডেভেলপমেন্ট তো হচ্ছে। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো বলো। ইন্দিরা গান্ধী যখন মারা গেছে তখন আমি দিল্লি, রাজীব যখন মারা গেছে তখন আমি এখানে। তখন দিল্লি ব্রিটিশের কোর্টে লিমিটেড কলকাতাতে চাকরি করে, চাকরি তখন আমাদের খুবই অবস্থা খারাপ, এই ইউনিয়নবাজি করে চাকরিটা চলে যাওয়ার পরে তখন আমি শিখে করতে চলে আসি। সেই টুকটাক মাছের ব্যবসা করতে করতে অনেক মাছ নিয়ে এসেছি, আবার ফেলেও দিয়েছি। ল্যাপটপে বসছিলাম কিন্তু কোনোদিন খুলিনি। ওদিকে পুলিশ আটকে দিচ্ছিল, এদিকে পুলিশ আটকে দিচ্ছে, কাস্টমারটা আসবে করতে। আসতাম ডেলি বাজারে এসে দোকান করে নিয়ে যাওয়া চলে যেত। অনেক মাছ নিয়ে এসেছি, আবার ফেলেও দিয়েছি। কাল বিজনেস যদি না জানলে তো কী হবে, হাই দামে কিনছি আবার বিক্রি হচ্ছে না, ফেলে দিচ্ছি। বাজারে এখন বলতে গেলে কি চলবে, এখন জিনিসপত্রের তো দাম, তো জিনিসপত্রের দাম আগে হয়ে গেছে, তো সেটা মানুষের তো রোজগার নেই, রোজগার কমে গেছে, আয় তো সেই একই আছে। জিনিসপত্রের যা দাম বেড়ে গেছে, মানুষ খাবে কি, চলবে কি, আয় সেই একই আছে মানুষের। সেই 350 টাকা 500 টাকা রোজ আছে, 500 টাকা 350 টাকা রোজে কিছু ব্যবহার যা জিনিসপত্রের দাম। আর
ওই সময়ই হাটে বেশি করে হিন্দুস্তানিরা বসতো। হ্যাঁ এখনো বসে। ওই সময় এমনই ছিল, মানে সবসময় বাঙালি কোনোরকম পেটকে চালাতে হবে, জাত বলে কিছু নেই, মানুষ খেলেই কোনোরকম খেলে, হিন্দুস্তানি বলে সে ছোটো, বাঙালি বলে সে বড়, এইরকম কোনো ব্যাপার নেই, সবই এক। এটা আপনি এখানে ছোটোবেলা থেকে দেখতে পান। আর ছোটোবেলা যে হিন্দু মুসলিম আলাদা, বাঙালি আলাদা তা না, একই আছে, সবাই সবার সঙ্গে রিলেশন আছে, সবাই সবার সঙ্গে মিশে, এইটুকুই দেখছি, কিন্তু ঝগড়া শান্তিটা নেই। মনে হচ্ছে বাজারে বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছে, যারা বাজারে বসছে এরকম কিছু, বা তোমার বাজার যাওয়ার হ্যাবিটটা কিছু চেঞ্জ হয়েছে? না, এটা প্যান্ডেমিকের জন্য কিছুতে চেঞ্জ হয়েছে। আগে যেটা আমরা রেগুলার কিনতাম, এখন সেটা 3 দিন অন্তর 2 দিন অন্তর কিনে নিয়ে আসছি। আগে যে ছিল না রোজই আমাদেরকে বাজার যেতে হবে, প্যান্ডেমিকটা আসার ফলে হয়েছে কি না আমরা এটাকে 3 দিন মানে সপ্তাহে 2 দিন বাজার গেলেও হবে। প্যান্ডেমিকের সময় তো আমরা তো 7 দিনের বা 10 দিনে কিছু মজুত করে রাখতাম, এই ব্যাপারটা হতো। যেমন দুধ আমরা ডেলি কিনে নিয়ে আসতাম এবং সেখানে 2-3 দিন অন্তর সেটা কিনে নিয়ে আসছি, এবং এখনও সেই হ্যাবিটটা আস্তে আস্তে চলে আসছে। তো এরকম এই যে বাড়িতে এই যে গিয়ে গিয়ে মানে মাছ বিক্রি করা, চিকেন আনা, এই জিনিসটার ফলে তোমার কি মনে হচ্ছে যে বাজারের ইয়েটা, বাজারে যাওয়ার অভ্যেসটা লোকের চেঞ্জ হবে? না, অ্যাকচুয়ালি তো মানে লোকের যদি বাড়ির দোরগোড়ায় যদি কিছু পেয়ে যায়, তাদের তো লোকে তো বাজার যাওয়াটা কমবে। नमस्ते, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हम इस बाज़ार पे फिल्म बना रहे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का बाज़ार कैसा है, कोरोना का यहाँ पर क्या असर रहा है, उसी के बारे में आपसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हैं? आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है कि बांग्ला में? কতক্ষণ লাগলো? নারীপুর থেকে আসতে আপনার আধ ঘন্টা এরকম 40 মিনিট লাগে। আর আপনারা এখন এখান থেকে এখানে এসেছি 8 ঘন্টা মতো। আপনার সঙ্গে 2 মিনিট কথা বলতে পারি? হ্যাঁ, আমি সব ধরবো, কাস্টমার ধরলেও ভালো, আপনাকে মানে ডিস্টার্ব করতে চাই না, আপনি কাজ করতে থাকুন, আমি জিজ্ঞেস করতে থাকবো। তো অন্য কোনো বাজারে অনলাইনে কেনেন না? না। কেন? অনলাইনেও নেওয়া হয় পছন্দ হলে। और कौन से बाजार में जाते हैं? बस यही खाली हफ्ते बाजार में आते हैं हर सोमवार को, बाकी तो उधर ही अपना बेचते हैं। कहाँ पे? बेलूर में। কি করে জানতে পারলেন সবাই আসে মুখে মুখে শুনে সবাই এসেছে। আর আপনি এখানে 14 বছর থেকে আসছেন প্রত্যেক সোমবার, আর বাকি সপ্তাহ আপনি কি করেন? ও তাড়াতাড়ি দাও। সেলফাস গ্যাস পাউডার, এই সেলফাস গ্যাস পাউডার বিভিন্ন রকম খাবার দ্বারা তৈরি, যেমন মুড়ি, চিড়ে, চানাচুর। कितने दिन तक हाथ नहीं लगाया आप लोगों ने, दुकान नहीं लगाई? ये तो हम लोग का यहाँ पे बहुत जरूरत तो 2 महीना चल रहा है यहाँ पे लगाते हुए, तो मतलब पूरा मतलब बीच में 8-9 महीना पूरा बैठे थे,
साइकिल में लेके जाके बेच देते हैं। और भी बहुत सारा कारण है, दिनों दिन आदमी बेरोजगार होते जा रहा है, इसका मेन कारण है कुछ खरीदने का पैसा भी नहीं है और गली गली में बिकने भी लगा। एक बात 100% सच्चाई है, आप देख लीजिएगा, कभी भी जो इंसान मेहनत करने वाला है, खेती करने वाला मुटिया मजदूर को कभी नहीं सुनेंगे। और अगर उसको यहाँ से नहीं विश्वास होता है, तसल्ली नहीं होता है, तो एक बार यहाँ आए और एक बार मेरे साथ राजा बाजार में मिले, वहाँ पे मेरे वर्कर लगे। जितना पूछना चाहते हैं तो पूछ नहीं सकते। अंदर जाके तो आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? ये लगभग हम बहुत छोटी उम्र से कर रहे हैं, करीब मेरी तो 12 साल से कर रहे हैं। पिछले साल इसी समय के आसपास हाँ, बंद था, पूरा मतलब बंद था। तो उस समय आपके ऊपर क्या क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें यही है कि पैसे की तंगी थी, जिसके वजह से उतना तो देखिए हम लोग जितने कमाते हैं हफ्ते में 1000-2000 रुपये से, काम अच्छा चला तो 3000 के करीब ऊपर में जा पाते हैं। तो उसमें बच्ची की पढ़ाई है, फैमिली का खर्च है, अपनी खर्च है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी वजह से चलाते हैं। तो हालात ये आ जाता है लॉकडाउन की वजह से, इसका तो हालात है कि टोटल बंद। अब टोटल जो ऑफ हो गए, जो हम लोगों का रोज़ का मतलब कि जिम्मेदारी वाला वो सब मतलब हम लोग बेकार हो जाते हैं। बस यही मसले को लेकर हम लोग सोचते हैं कि जब हालात जब ऐसा आएगा तब देखा जाएगा। सुनने को वही आ रहा है कि सभी के मुँह से कि लॉकडाउन होगा, और हो सकता है कि हो, क्योंकि और भी स्टेट में देख रहे हैं, मुंबई वगैरह में देख रहे हैं, है ना, ये सब जगह में लॉकडाउन हो चुका है, नाइट कर्फ्यू लग चुकी है। मगर सिर्फ नहीं होने की वजह है कि बंगाल में अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पार्टी वाले लोग इसको ये किए हुए। नहीं तो यहाँ भी जो हिसाब से है कि हो जाएगा, क्योंकि बीमारी है ऑलरेडी, मगर अब पार्टी वाले लोग उसको कब बढ़ावा देंगे कि बहुत बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ा है, ये इन लोग बता बेहतर सर। अब उन लोग जब चाहेंगे कोरोना को एक बार बढ़ा करके बोल देंगे कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब बंदी, लोग क्या करेंगे, बंद और अपने घरों पे जाएंगे। देखिए ये तो राजनीति वाला मामला है, ये राजनीति उन लोग ही बेहतर जानते हैं। हम लोग मजदूर तबके लोग हैं, तो हम लोग मजदूरी के हिसाब से ये सोचते हैं कि हम लोग को रोज़ाना का मामला से जो भी है चलता रहे, दाल रोटी की भी आसरा हो, तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम लोग सोचते हैं कि मेहनत करके, हम लोग वो लोग नहीं है कि बस ज़रा सा मुश्किल आए ना कि किसी के घरों में जाके हाथ फैलाना शुरू करते। और हम लोग जैसे लोग, हम लोग भीख मांगना पसंद भी नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि अगर मजदूरी करना पड़े, कहीं पर मोटिवेट होना पड़े, तो हम लोग खुद से कमा के खाएँ, और नहीं तो फिर भूखे घर में ही मर जाना पसंद करें, किसी आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करेंगे। तो यही जब ज़्यादा होता है तो उसको हम 2 पैसा जोड़ करके रखते हैं कि आने वाले दिन में कोई भी समय हालात आए तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं। तो उतना भी नहीं रख पाते जो हालात को लड़ पाएँ। जिस तरीके से जितना लॉकडाउन हुआ तो हम लोग हालात वैसा नहीं था। लॉकडाउन का मसला नहीं है, इससे पहले भी राजनीति की वगैरह से ये सब सिलसिले से मतलब कि काम बहुत ही चले गया, कारोबार एकदम मतलब ख़राब हो चुका है। इस कदर ख़राब हो चुका है कि लोग मतलब कि सोच रहे कि क्या होगा। बड़े बड़े बिजनेस जो है बंद हो चुका है। यहीं पर बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज हैं बंद हो चुके हैं, जिसमें से कुछ लोग बेघर हो चुके हैं। कोरोना के पहले भी लोगों ने बाजार में आना कम किया था, क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इसका क्या कारण? आप जितने बड़े बड़े कारखाना व फैक्ट्री को देखिए, खादिम हो, सी लेदर हो, अजंता वाले हो, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लोकल ही मतलब कारखाना, जैसे कि हम लोग ही बना रहे हैं। उन लोगों का अपना का फैक्ट्री नहीं है, बहुत कम होगा जो होगा, भी रखे हुए फैक्ट्री नहीं है। उन लोग, हम लोग जैसे लोग से माल लेते हैं, अपना लोगो छपा करके उसमें माल को परचेस करवाते हैं, तो वो ब्रांडेड हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग तो लोकल में ही हो रहा है। फूड में बेचते भी हैं तो उस चीज़ का हमको वैल्यू नहीं मिलेगा। वैल्यू लोग उसी को देते हैं कि मतलब कि पोजीशन पर माल रखा हुआ। यही चीज़ अगर फूड में रखा हुआ तो इसको हम खुद नहीं वैल्यू देंगे, और यही चीज़ अगर एक दुकान पे जाकर ऐसे अगर डिस्प्ले हो रहा हो तो हम उस चीज़ का वैल्यू देंगे। क्यों? उस दुकान के बिना पर। তুমি ছোটোবেলায় এরকম যেতে মিলের বাজারে? হ্যাঁ, ছোটোবেলায় মিলের বাজারে যেতাম আমরা। মেনলি সকালবেলাটা যেতাম ইয়েতে, আর ওই যেহেতু মানে কাপড়ের যে মার্কেটটা ছিল, মানে জাস্ট এটা ম্যাক্সিমাম ওই নন বেঙ্গলিদের গ্যাদারিংটা বেশি ছিল বলে আমরা যেতাম না, বা আমরা কিছু পারচেস করতাম। সেহেতু মানে আমাদের এখনও মানে অবিশ্বাস হয়ে আছে যে ফুটপাতের জিনিস যখন তখন ভালো হতে পারে, না হতে পারে, সেই জন্য আমরা সেখানটা যাই না। আমরা একটা দোকানের মধ্যে কিনতে ভালো
জিনিসটা খারাপ হলেও আমরা একটা দোকানেদেরকে এক্সচেঞ্জ করতে পারবো, কিন্তু হাতে সেটা করবে কি কোনো একটা আনসার্টেনি ব্যাপারটা থাকে। मसला यही रहता है ना कि फुटपाथ में लोग बहुत सारे मतलब कि बेचते हैं, वो ठीक ही बेचते हैं, मगर जहन में हम लोग का ये बना हुआ है कि ये फूड में बेच रहा है, तो ये जो फूड में बेच रहा है तो ये किस तरीके से माल बेच रहा है, तो इसको जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है। अब आप अगर अच्छी कीमत पर माल लेके गए, अब वो माल जाने के बाद 2 दिन में यूज़ किए और इस्तेमाल से वो ख़राब हो गया, टूट गया, तो आपको लगेगा कि भाई हम 100 रुपये दिए इसमें, 2 दिन भी इस्तेमाल नहीं किए, बेकार हो गया। अब कंपनी से जाकर लेते हैं, अगर 2 दिन में टूट जाता है, फिर आपको नया एक चप्पल मिल जाता है। फिर भी ये नहीं सोचता लोग कि वो जो नया चप्पल दे रहा है तो किस बिना पर दे रहा है, वो वहाँ हमारे ही पैसे से वो दे रहा है, अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहा वो। तो जो लोग बोल रहे हैं फूड का बाजार में मत जाओ, वहाँ खतरा है, वो गलत बोल रहे, आप क्या जवाब दें? वो बिल्कुल गलत बोल रहे, क्योंकि फूड से वो भी जुड़े हुए हैं। आज अगर फूड से जुड़े नहीं होते तो रोड में चलते नहीं, वो गाड़ी ख़राब होने के बाद आपको रोड में ही आना पड़ता है। ये मत समझिए कि गाड़ी ख़राब होगा तो गाड़ी पर ही चढ़ के जाएंगे, नहीं, आपको फूड में आना पड़ेगा। तो फूड वाले लोग ऐसे नहीं कि वो बेकार हैं और वो बेकार ही दुनिया में रह रहे, नहीं, वो भी फूड वाले, वो भी मेहनत करके खा रहे हैं। और आपको बेहतर है कि आपको नीचे वालों को देख के चलना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले ही से आगे बढ़ता है। आज आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वही फूड वाला ही लोग जाके उस गाड़ी को बनाएंगे और आपको उस पर सवार होकर फिर जाएंगे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रहे हैं 36847 हावड़ा बर्धमान लोकल भाया कट लाइन 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन गुप्ता है, हम डानकुनी से आते हैं। और ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद बिहार। स्टार्टिंग में लेबर का काम करते हैं, उसमें 48 रुपया 8 घंटा का मिलता था। फिर साइड से फिर हम सोचे कम पूंजी में क्या करें, नहीं करें, तो आपका कम पूंजी में वही चप्पल का काम करना चालू किया। जहाँ तहाँ हाल ढूंढ के रास्ता में बेचते बेचते फिर हाट में बेचने लगे। हाट में कस्टमर दूर दूर से आते हैं और आम बाज़ार में तो जहाँ का लोकल है वहीं का लोग। हाट में दूर दूर से कस्टमर आते हैं, नए लोग मिलते हैं, बाहर से आते हैं, सेल ज़्यादा होता है। बहुत जन को बहुत बार पानी पिलाए हैं, बहुत बार को दवा ला के दिए हैं, बहुत बार को घर तक भी छोड़े हैं। हाट से ही संसार चलता है। मेरे जितने मतलब बहुत ऐसे ग्राहक हैं, किस्सा क्या बताऊँ, वो मतलब मुझे आने से पहले यहाँ बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आता हूँ सामान लेकर के ऐसा नहीं दे सकता। देखिए सबसे बड़ा हाट में हम लोग बहुत चीप एंड बेस्ट में माल बेचते हैं। मतलब एक माल में हम लोग ऐसा नहीं है जैसे
ऑनलाइन में क्या है, ये माल को 150 का माल का वो लोग 700, 800, 500, 1000 रुपया प्राइस मार के लिख देते हैं 50% ऑफ। किंतु वही चीज़ वही माल को मैं यहाँ पे आपको मतलब 5 मैन्युफैक्चरिंग से 5 रुपया लाभ रख के कस्टमर को डायरेक्ट पहले धीरे धीरे एडजस्ट करते करते सोचते तो मेरे व्यवसाय में होलसेल तक पहुँच गया। रिटेल करते करते होलसेल सब खुद का मैन्युफैक्चर ही कर दिया। 2-4 मतलब 10-15 लेबर लगा करके माल बना। फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इस कोरोना के लेकर के जो बंदी हुआ उस समय बहुत घाटा नुकसान बहुत ज़्यादा पड़ा। क्यों आप बता रहे थे मेरे को सुबह भी कि आपका तो एक पैर फ्लिपकार्ट में भी है, एक पैर ऑनलाइन में भी है। हाँ, तो उतना वो सब चलता नहीं है, उतना वो सब पहले चलता था, अब उतना चलता नहीं। अगर वो बढ़िया बेटर चले तो हाट में क्यों आए। তো অনলাইন মার্কেটের জন্য তোমার কী মনে হয়? অনলাইন মার্কেটের জন্য বাজারে যা রেট বাজারটা কি শেষ হয়ে যাবে, কী মনে হচ্ছে? অনলাইন মার্কেটটা হয়ে গেছে যে মানে জাস্ট আমাদের মতন এই যে লোকেদের কাছে জাস্ট আমরা এখনও ঠিক মতন মানে মোবাইলই চালাতে অপারেট করতে পারি না। তার উপর আমাদের মধ্যে থাকে আমরা এখন অনেকেই আছে যে ক্রেডিট কার্ড বা নেই, তারপর অনেকের এটিএম কার্ডও অনেকের নেই। दादाजी कर लो फुल इत्मीनान, ओरिजिनल यहाँ है सब सामान, अपनी दुकान दादा अपनी दुकान। ये सब उधार का धंधा है, ये दिखने में लग रहा है ऐसा, आप रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस कर रहे हैं इसलिए बीच में बंद करने वाले थे। इसमें मैं दिखला रहा हूँ मेरा कारखाने का भी फोटो है। तो कोरोना नहीं आता तो अभी तक आप हाट में बैठना छोड़ चुके होते। वो आने से मैं बैक हो गया, माल लेकर के आना, लगाना दुकान, बेचना, सब कष्ट ही है। फुट में बैठना, जिसको नहीं 2 बात बोलना वो भी आके बोल के जाता है। यहाँ फूड में मतलब सब छोटा समझता है, फूड में है तो वो भी गवर्नमेंट के जगह में है, रेलवे का जगह में है, कब क्या करेगा कोई ठीक नहीं, इसका कोई भविष्य नहीं। सोचना चाहिए अगला फूड में भी बैठा है वो भी इंसान है, वो भी अच्छा है, इज्जतदार, उसका मानसिकता अगर ये रहेगा तो फिर जैसे तैसे बात नहीं करेगा। इंसान तो हम वही हैं, यहाँ फूड में बैठते हैं, वहाँ गद्दी में बैठते हैं, वहाँ पे मेरे वर्कर लगे हुए, लेबर लगे हुए, इंसान में एक ही। अब उन लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा जन्म अंबानी के घर में होता तो हम अंबानी का लड़का कहलाते। आज इंसान एक ही है, किंतु मेरा जन्म अगर गरीब घराने में हुआ तो मैं गरीब का लड़का हूँ, लेकिन इंसान हम एक ही है। उसी तरह सामान एक ही है, जैसे ऑनलाइन में बिका 1 नंबर हो गया, हाट में आ गया 2 नंबर। ये इंसान का सोचने का नज़रिया, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना ही फर्क है। और कुछ आगे का तो आशा है लेकिन दिख नहीं रहा है। नहीं भरोसा ऐसा कुछ नहीं। जब तक देखिए हम भविष्य में नहीं जीते, वर्तमान में जीना ज़्यादा बेटर है। जो अभी है कल का होगा वो कौन जानता है। मेरा लाइफ में मतलब लोग वर्तमान में जीने का आदत है मुझे, अब भविष्य का चिंता करते भी नहीं है और जीने का आदत भी नहीं करते।